Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with set number 4 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solution. So this particular set is on arrangement, which I've taken from previous year's SimCats, and the set says 15 students are standing in a room for a group photo. The students have been classified into three different categories based on their height, tall, medium, and short. At least three students are there for each category. The number of students of three different categories are distinct. The additional information is also given for the question. Information number one कह रहा है कि among the first five students from left to right, only one of them is short. Among the first 10 students from left to right, maximum students are of medium height, followed by short height, and least number non-zero of students are tall height. The student in 10th and 12th position from left to right were the only two consecutive position where the student belong to the same category. Point number four कह रहा है maximum number of students are not of medium height. There is only one pair of tall students, such that the two students in the pair are separated by exactly five students of the other two different categories. Okay. एक बार क्वेश्चंस भी पढ़ लेते हैं. Which of the following must be true? A, B, C, D कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं. What best can be said about the number of students who are of short height? Height wise category of a student of how many students can be uniquely determined? Which of the following is or are definitely true? What will be the correct range of the value among the following four options within which the sum of the position value, if we find a student in standing in the fifth position from left, then this position value would be 5 of all the tall student will lie. ठीक है. एक लीनियर अरेंजमेंट का सेट जहां पे अपने को क्या पता है 15 लोग हैं जो कि एक रो में खड़े हैं एंड उस रो के अंदर 15 लोग जो है उनको कैटेगराइज करा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट. हाइट कैसे है? शॉर्ट हाइट, मीडियम हाइट, टॉल हाइट, और उनका एक अलग अलग ऐसा कुछ अपने को डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, वही अपने को अरेंज करना है. ठीक है. क्या करा जाए? लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट. मैंने क्या करा, एक टेबल ऐसा बना लिया. ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे केसेस बन सकते थे, तो मैंने 1 से लेके 15 तक का नंबर दे दिया एंड आई थिंक कि क्या और केसेस अपने आ सकते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द पैसेज एंड देन लेट्स फिगर आउट कि क्या कर सकते हैं. 15 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ रो ऑफ अ ग्रुप फोटो. ठीक है, मैंने 15 का एक पूरा ऐसा फ्रेमवर्क तैयार कर लिया. द स्टूडेंट हैव बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री डिफरेंट ग्रुप based on their tall, medium and short height. At least three students are of each category. कम से कम तीन है जो कि हर कैटेगरी के होने चाहिए. कम से कम तीन मतलब तीन से ज्यादा होने चाहिए. तीन से ज्यादा. द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ थ्री डिफरेंट कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट. यानी कि ये जो तीनों हैं वो डिस्टिंक्ट होने वाले हैं. यानी कि अगर हम बात करें, अगर कोई एक ग्रुप में तीन है तो बचे हुए ग्रुप में क्या हो सकता है, यानी कि रिमेनिंग 9. ठीक है, सॉरी रिमेनिंग 12. यानी कि 12 हो सकता है 4 से, 8 से, या 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है. 3 6 6 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 6 और 6 नहीं होगा, बिकॉज इट इज मेंशन कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ थ्री डिफरेंट कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट. तीनों ही ग्रुप के अंदर वो अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वुड बी देयर. तो 3 5 7 कुड बी एक पॉसिबिलिटी. 3 6 6 कैन नॉट बी द पॉसिबिलिटी. ठीक है, 4 के लिए कर सकते हैं क्या? 4 भी पॉसिबल है, यानी कि 4 5 एंड 6. और कोई पॉसिबिलिटी 5 से लेके कर सकते हैं क्या? 5 के अगर लेंगे तो पीछे कितना बच जाएगा हमारा? 10. 10 को 5 में बनाना पड़ेगा, लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम है कि अपने को तीनों सेम लेने पड़ेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि तीनों जो ग्रुप है वो डिस्टिंक्ट होते हैं. ठीक है, यूजिंग दैट पॉइंट हमने क्या फिगर आउट करा, ये जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है ये कुछ ऐसा होने वाला है. 3 4 8, 3 5 7, 4 5 6, किसी एक ऑर्डर में किसी को अपने को देना होगा. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1. अमंग द फर्स्ट 5 स्टूडेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओनली वन ऑफ देम इज शॉर्ट. पहले 5 में, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक खाली एक शॉर्ट हाइट वाला है. यानी जो बचे हुए हैं वो मीडियम हो सकते हैं या तो लार्ज हो सकते हैं, सॉरी टॉल हो सकते हैं, बेसिकली वो ये हो सकते हैं. ठीक है. अच्छा, among the first 10 students from left to right, the maximum number of students are of medium height, followed by the short, and least number of students are tall. अच्छा, पहले 10 की जो बात कर रहा है, यानी कि यहां से लेके यहां तक, पहले 10 के, यानी यहां से लेके यहां तक, ये ऐसे हैं जो कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होने वाले हैं, मीडियम वाले बच्चे होने वाले हैं, फॉलोड बाय शॉर्ट हाइट वाले, फॉलोड बाय टॉल हाइट वाले. यानी कि सबसे ज्यादा इस 10 के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मीडियम है वो सबसे ज्यादा होंगे, उससे कम शॉर्ट हाइट वाला होगा, उससे कम टॉल हाइट वाला होगा. पॉइंट नंबर 2 ऐसा डिफाइन करा होगा. पॉइंट नंबर 1 भी हमने नोट करा होगा. Point number 3. The student in 10th and 11th position from left to right were the only two consecutive position where student belong to the same category. 10th और 11th ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, सॉरी जो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है वो बराबर आने वाली, यानी कि स्मॉल स्मॉल, मीडियम मीडियम या टॉल टॉल, ऐसा कुछ होने वाला है.
ठीक है, पॉइंट नंबर 3 को भी नोट कर लिया। पॉइंट नंबर 4, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट आर नॉट ऑफ मीडियम हाइट। जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट हो सकते हैं वो मीडियम हाइट के नहीं होंगे। यानी कि अगर मैं यहां से ध्यान दूं ये वाली चीज पे, यानी कि जो तुम्हारा ये है मैक्सिमम नंबर, यानी कि मीडियम वाले जो हैं वो तुम्हारा ना 8 हो सकता है, ना ही 7 हो सकता है, ना ही 6 हो सकता है। प्रॉब्ली ये 8 7 6 में से कुछ नहीं हो सकता। वो क्या हो सकता है, 3 4 5 में से कुछ हो सकता है। मतलब 3 4 3 5 4 5 ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक, यानी कि मीडियम के लिए अगर हम बात करें तो 3 4 5 में से कुछ एक अपने को बन रहा है, ये होना चाहिए। अच्छा, थोड़ा और पढ़ते हैं। ठीक है, मीडियम के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट हैज टू बी 3 4 या 5। ये 3 केसेस पॉसिबली बन सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 नोटेड। पॉइंट नंबर 5, there is only one pair of student of tall student such that the two student in the pair are separated by exactly 5 student or the other two different categories। ऐसा पूरे के अंदर एक एग्जैक्टली इंस्टेंस ऐसा जहां पे दो टॉल के बीच में 5 अलग कैटेगरी के स्टूडेंट खड़े हुए हैं। ठीक है, यानी कि एक टॉल यहाँ पे लेट्स से हाइपोथेटिकली 1 पे और दूसरा टॉल 7 पे होगा, और ये जो 2 3 4 5 6 ये 5 बच्चे हैं, ये 5 मीडियम और शॉर्ट हाइट के कॉम्बिनेशन के होने वाले हैं। अब वो कैसे आएगा ये नहीं पता। पॉइंट नंबर 5 भी नोट कर लिया। ठीक है, ऐसा लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक टॉल 1 2 3 4 5 और ऐसा, ये दो टॉल के बीच में 5 लोग आने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को क्या क्या पता है। अपने को पहला पता है कि जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 4 8 3 5 7 या 4 5 6 में होना चाहिए। अपने को दूसरा चीज पता है कि 1 से लेके 10 तक मीडियम ज्यादा होगा, फॉलोड बाय शॉर्ट, फिर सबसे कम टॉल होने वाला है। अपने को ये पता है कि पूरे 15 के अंदर एक इंस्टेंस केवल है जहाँ पे दो लोग एडजेसेंट आते हैं, वो है 10 और 11 वाला। ठीक है, द स्टूडेंट इन 10th 11th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वर ओनली टू कंसेक्यूटिव पोजीशन वेयर स्टूडेंट बिलोंग टू द सेम कैटेगरी। और कहीं पे भी ऐसा नहीं हो रहा जहाँ पे सेम कैटेगरी के बच्चे साथ में खड़े हों। ठीक है, ऑल्सो अपने को ये दे दिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट मीडियम वाले नहीं है। अगर वो मीडियम वाले नहीं तो मीडियम वाले 3 4 5 हो सकता है। मैंने यहाँ से ये ब्रेक करा हुआ है। ठीक है, there is only one pair of students such that the two student in the pair are separated by exactly 5 student of the other two student category। ये भी हमने यहाँ पे नोट कर दिया। ठीक है, अब क्या करा जाए, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अपने को ये पॉइंट जो दिया हुआ इस पे दिमाग लगाते हैं। पहले 10 के अंदर मीडियम वाले 10 में से कितने आएंगे, 10 में से कितने आ सकते हैं, या तो 3 आएंगे, या तो 4 आएंगे, या तो 5 आएंगे। 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, और ये जितने भी हैं ये सबको यहीं पे रिडीम करना पड़ेगा, यहीं पे अपने को इनकैश करना पड़ेगा। ठीक, क्यों यहाँ पे इनकैश करना पड़ेगा ये सोचो। अगर ऐसा समझना, मीडियम का 3 कर देता हूँ, ठीक है, रिमेनिंग वाले कितने होंगे, 3 से, ऐसा हाइपोथेटिकली देखना ना। अगर 3 करता हूँ यानी कि मीडियम वाला अगर 3 है तो वो पहले 10 में 3 आने चाहिए, यानी कि बाकी कितने होने चाहिए, 2 और 1। नॉट पॉसिबल। ठीक है, यानी कि इस केस में शॉर्ट हाइट वाले 2 होने चाहिए थे और टॉल हाइट वाले 1 होना चाहिए था। ये तो 6 ही बना, अपने को 10 बनाना था। अगर 4 लेता हूँ, ठीक है, ये नहीं तो ये हो सकता है ना। मतलब ऐसा कि मीडियम वाले जो 4 है वो ऐसा मान के चलता हूँ ये चारों इसी में आ रहे हैं, बिकॉज पहले 10 में आने ही आने हैं। ठीक है, अगर 4 आते हैं तो 4 का मतलब पीछे क्या बचा, 3 और 1, ये टोटल सम कितना बन रहा है, 8। ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉइंट समझ रहे हो। यानी कि मीडियम पे मैंने 3 रख के देखा, 4 रख के देखा, दोनों पॉसिबल नहीं है। नहीं, मीडियम का क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। यानी कि मीडियम वाले कितने होंगे, 5 होंगे पहले 10 के अंदर। और मैक्सिमम भी 5 ही हो सकते हैं, इसके बियॉन्ड तो हो भी नहीं सकता। यानी कि हमने इस लॉजिक से कनेक्ट करा कि मीडियम कितने होने वाले हैं, 5 होने। है। ये लॉजिक फिर से समझा देता हूँ। मैंने क्या करा, मीडियम के लिए केस लिखा हुआ था कि प्रॉब्ली ये 3 4 5 हो सकते थे। मैंने सोचा कि ये जो 3 है ये 3 के 3 पहले 10 में रखते हैं, तो उस केस में 2 और 1 आ रहा था, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ये पूरा कितना बन रहा है, 6। मेरे को चाहिए कितना, 10 चाहिए था। ठीक है, मैंने 4 रख के देखा, तो 4 से कम 3 और 1, यही दो एक सिचुएशन बन सकती है। 4 2 2 नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, बिकॉज 2 और 2 बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या बनेगा, 8। नॉट पॉसिबल। एक ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, 5 वाली। ठीक है, अब ये 5 वाले में कहाँ पे रखेंगे, समझना ना, 5 वाले पे कहाँ रख सकते हैं। अपने को पता था कि ये पहले 10 में 5 आने वाले हैं, और अपने को पता है वो कंसेक्यूटिव नहीं आते हैं, बिकॉज कंसेक्यूटिव केवल 10 और 11 में आते हैं। ठीक है, तो पहले 10 में अगर अपने को 5 जगह पे मीडियम देना है तो या तो वो सारे ऑड नंबर्स में होगा या तो वो सारे इवन नंबर्स में। ठीक है, यानी कि 2 4 6 8 10, लेकिन 10 पे लाऊंगा तो वो 11 पे भी देना पड़ेगा। इन दैट केस मीडियम कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। कैसे, देखना, 1 2 3
4 5 6, यानी कि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 6 मीडियम बन जा रहे हैं। बाय दिस लॉजिक मैंने क्या कंक्लूड करा, यहाँ पे क्या होना चाहिए था अपने पास, मैक्सिमम अपने को जो 5 बनाना है वो कैसे बन सकता है, जब हम इनको ऑड नंबर पे देंगे, यानी कि वी कैन नॉट गिव मीडियम टू दी इवन प्लेसेस। ठीक है, तो एक चीज अपने को यूनिक मिल गई, यानी कि यहाँ पे एम 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 और एम। ठीक है, 1 2 3 4 5। लेट्स से यहाँ पे एक और एम अपना केस बना लेते हैं, क्योंकि मेरे को 2 केसेस शायद जरूरत पड़े ही पड़े, और इससे ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, बट 2 को अपन फिगर आउट कर लेते हैं। अब ये तो चीज आसानी से निकल गई, अगर ये 5 है, ठीक है, तो इसके बाद वाले क्या हो सकते हैं, 4 1 10 बनाने के लिए, विच इन अ वे सीम्स पॉसिबल, या 5 3 2 पॉसिबल है। ये 2 सिचुएशन है जो कि बन सकती है, 5 4 1 वाला या 5 3 2 वाला। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 5 ये 4 लोग होंगे और यहाँ पे एक कोई आ रहा होगा, और या तो 5 3 2 होना चाहिए जिसमें से पहले 10 के अंदर आने वाला है। ठीक है, हमें एक चीज और पता है क्या, ये जो चीज है यहाँ पे अगर ध्यान दो तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 2 और 4 में से कोई एक जगह पे शॉर्ट हाइट वाला कोई एग्जैक्टली एक ही जगह पे आने वाला है। तो लेट्स से कोई एक जगह पे ये जगह है और कोई एक जगह ये वाली जगह है। ठीक है, तो यानी कि ये कौन हो गया, टॉल, और ये हो गया टॉल। ठीक है, ये 2 सिचुएशन बन सकता है, बिकॉज अपने को शॉर्ट हाइट वाला एक करना था। ठीक, अब यहाँ पे टॉल हाइट को लेके अपने को क्या पता था, टॉल हाइट सबसे कम होने वाला है पहले 10 के ग्रुप में। ऑल्सो हमें एक चीज और पता था टॉल हाइट के कॉन्टेक्स्ट में, कि देर इज ओनली वन पेयर ऑफ अ टॉल स्टूडेंट सच दैट 2 स्टूडेंट इन द पेयर ऑफ आर सेपरेटेड बाय एग्जैक्टली 5। वो जो है अलग कॉम्बिनेशन से जाने वाला है। क्या वो इधर बन सकता है, वो जो 10 का एक इसका अलाइन होने वाला, अब क्या 10 10 का ऐसा बना सकते थे, मान लो अगर मैं इधर लेता हूँ टी 1 2 3 4 5, बन नहीं सकता। टी 1 2 3 4 5, प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो एरिया है इधर के बाद वाला, यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे शॉर्ट और टॉल हाइट का ही कॉम्बिनेशन आने वाला है इन सब ऑर्डर। अभी ऑर्डर क्या ये नहीं पता, बट सब ऑर्डर इट हैज टू बी शॉर्ट टॉल शॉर्ट टॉल शॉर्ट टॉल, यही सब चलने वाला है। तो ये जो टॉल वाला एक और 5 वाला है, वो इधर ही से कहीं से शुरू होना चाहिए। अब इधर से कहाँ शुरू हुआ ये देखते हैं। अगर एक टॉल यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5, यानी कि एक टॉल अपना यहाँ पे आ सकता है, जिसमें कि अपने को पता है कि इनको मैं बाकी लोगों से कॉम्बिनेशन के साथ बना सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे 2 शॉट दे दिया 2 शॉट दे दिया। ठीक, एक टॉल अगर यहाँ पे है, तो यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि टॉल को मैं इधर भी दे सकता था, एक पॉसिबिलिटी। क्या मैं टॉल को कहीं और दे सकता हूँ, और भी दे सकता हूँ क्या, अगर मैं 2 पे दे सकता तो 4 पे दे सकता, क्या मैं 6 पे दे सकता हूँ, इधर भी दे सकता हूँ। अगर मैं इधर दूंगा तो कितना बन जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे भी टॉल बन जाएगा, 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ पे टॉल आना चाहिए। ठीक है, उसको अपन रब कर लेते ताकि कंफ्यूजन। अब मैंने क्या करा हुआ ना, जितने टॉल की पॉसिबिलिटी थी 5 5 वाले, बिकॉज मेरे को पता था कि उसमें से जो 5 में से एक इधर होगा, वो 10 वाले की इधर होगा, दूसरा इधर होगा। मैं बहुत 12 13 के बाद नहीं जा सकता। अब देखना 12 13 में प्रॉब्लम क्या है, मान लो मैं टॉल को यहाँ लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ सब पे मीडियम फिक्स है, अपने को ये पता है। यहाँ पे अपना मीडियम फिक्स है, इसके लिए मैं उसको वहीं पे ले रहा हूँ इवन नंबर्स पे। ठीक है, अगर यहाँ पे टॉल लेता हूँ तो यहाँ देखना 1 2 3 4 5, प्रॉब्लम क्या है ना यहाँ पे, अब ध्यान देना, यहाँ पे तुम्हारा एक और ये जो 3 जगह है यहाँ पे कॉम्बिनेशन में शॉर्ट और टॉल का बन जाएगा, तो यानी कि ये वाला केस भी हम कंसिडर नहीं कर सकते, ये केस हम कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर जब बनाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, शॉर्ट 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 3 शॉर्ट आ जाएंगे, शॉर्ट हाइट वाले, शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, यानी कि ये तुम्हारा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। बाय दिस लॉजिक ये टॉल यहाँ पे नहीं आ सकता, यानी कि टॉल की जो पॉसिबिलिटी है ये पहले 3 में कहीं पे आनी चाहिए। ठीक है, लेट्स थिंक मोर। अब अपने पास क्या था, अपने को पता था कि पहले शॉट पे ये था, जैसे केस नंबर 1 पे चलते हैं, लेट्स लेट्स से कि दिस वाज केस नंबर 1। यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे एक स्मॉल आ चुका है, ये टॉल आ चुका है, 1 2 3 4 5 टॉल आ चुका है, तो यहाँ पे ये टॉल होना ही पड़ेगा, बिकॉज दोनों एडजेसेंट है। यहाँ पे क्या आएगा, शॉर्ट टॉल शॉर्ट टॉल, क्यों, क्योंकि इसके अलावा हमें 2 चीजें दी हुई थी, पहला एडजेसेंट वाला एक ही पॉसिबिलिटी था, और अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मीडियम में नहीं हो सकता, तो शॉर्ट और टॉल में हो सकता।
ठीक, यानी कि केस नंबर 1 पे चलें तो कितना बना 1 2 3 4 5 5 मीडियम, ठीक है 5 मीडियम, ये तो फिक्स है। 1 2 3 4 5, यार शॉर्ट हाइट वाले भी 5 मिल गए। प्रॉब्लम समझ आया? ये तो केस अपना पूरा गड़बड़ बन गया। क्यों गड़बड़ बन गया? बिकॉज अपने को क्या बोला था, तीनों कैटेगरी के लोगों को डिस्टिंक्ट रखना था। ठीक है, डिस्टिंक्ट रखना था। तो अपने को तो दिख रहा है यार ये भी 5 है, तो यानी कि टॉल भी 5 रहे होंगे। देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये भी 5 आ गया। यानी कि केस नंबर 1 पूरा पूरा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, केस नंबर 2 पे दिमाग लगाते हैं। केस नंबर 2 जहाँ पे मीडियम है, टॉल मीडियम ऐसा आ गया। यहाँ पे अपने को शॉर्ट एक दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो सकता था, पहले 10 के अंदर अगर ध्यान दिया जाए, पहले 10 के अंदर अपने को 2 टॉल मिल चुके हैं। 2 टॉल का मतलब ये वाला केस ही लेना पड़ेगा। ये वाला केस ले नहीं सकते, 541 वाला केस ले नहीं सकते, बिकॉज 541 में इट हैज टू बी ओनली वन टॉल। तो हमें ये 523 वाला, सॉरी 532 वाला लेना पड़ेगा, यानी कि रिमेनिंग इट हैज टू बी शॉर्ट हाइट वाले। यानी कि ये भी शॉर्ट, ये भी शॉर्ट। ठीक है, तो देखो कितने आ गए, 1 मीडियम 2 मीडियम 3 मीडियम 4 मीडियम 5 मीडियम, परफेक्ट। 1 टॉल 2 टॉल, परफेक्ट। 1 शॉर्ट 2 शॉर्ट 3 शॉर्ट, 3 शॉर्ट हाइट वाले बन गए, परफेक्ट। अगर ये शॉर्ट है तो ये भी शॉर्ट आना चाहिए। ठीक है, ये क्या आएगा, टॉल शॉर्ट टॉल शॉर्ट। ठीक, केस नंबर 2 लग रहा है बन गया। इसके एक बार काउंट देख लेते हैं, काउंट में क्या है, मीडियम कितने हैं, 5 हैं। शॉर्ट हाइट वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये कितने, 6। यानी कि टॉल हाइट वाले 4 होने चाहिए। टॉल हाइट वाला 1 2 3 4। यार ये पूरा केस लग रहा है जो कि एकदम बन गया है परफेक्ट, 5 से 4। ठीक है, लेकिन अभी और भी केसेस हैं, तो अपने को दिमाग उस पर चलाते चलना है, यहाँ पे रुक मत जाना, बिकॉज देखो एक केस अपना ये भी है जिसको चेक करना बाकी है। तो अभी तक अपने को ये केस नंबर 2 है जो कि एकदम परफेक्ट बनता हुआ दिख रहा है। केस नंबर 1 जो मैंने बनाया था, केस नंबर 4 वो तो प्राइमा फेसी मेरा एलिमिनेट हो चुका है। तो 1 है जो, सॉरी 2 है जो मेरे को यूनिक बन के दिख गया। लेट्स चेक ऑन 3। 3 में अपने को क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या होने वाला था, टॉल एक यहाँ पे, टॉल एक यहाँ पे। अगर ये दोनों टॉल है तो बीच में पहले 5 में कौन आने वाला था, शॉर्ट हाइट आने वाला था। यानी कि इसका एक केस और बन जाएगा यहाँ पे, कैसे, मीडियम 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 टॉल मीडियम मीडियम, यहाँ पे शॉर्ट हाइट वाला बंदा, यहाँ यहाँ पे शॉर्ट हाइट वाला बंदा। इसको मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। ये मेरा केस जो है ये गलत बना हुआ, बिकॉज यहाँ पे 3 शॉट आ गए थे। ठीक है, अच्छा, मीडियम 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 ऐसा पूरा लिखा हुआ है। एक शॉट यहाँ पे आ सकता था, एक शॉट यहाँ पे आ सकता था, यानी कि सिंगल शॉट वाले बंदे आ गए। यानी कि ये दोनों वाले कौन होंगे, टॉल वाले होंगे, ये टॉल और ये भी टॉल। अच्छा, पहले 10 के अंदर 2 टॉल अपने को मिल चुके हैं, यानी कि मेरे को फिर से यही वाला केस लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि रिमेनिंग 3 पीपल हैव टू बी शॉर्ट हाइट वाले, जिसमें से एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा इधर है। ठीक, अगर ये शॉर्ट है तो ये भी शॉर्ट आ जाएगा, बिकॉज एडजेसेंट का लॉजिक। और ये शॉर्ट टॉल शॉर्ट। ठीक है, ये भी अपना बन गया केस। केस नंबर 3 इज ऑल्सो परफेक्ट। इसमें नंबर ऑफ काउंट देखें, मीडियम 1 2 3 4 5। ठीक है, शॉर्ट हाइट वाला 1 2 3 4 5 6, फिर से वही 6 आ गया। टॉल हाइट वाले 1 2 3 4। केस नंबर 2 इज ऑल्सो गुड, एकदम पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सॉरी, केस नंबर 3 इज ऑल्सो गुड, पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेट्स चेक केस नंबर 5 जो मेरा लास्ट केस है। ठीक है, केस नंबर 5 पे दिमाग लगाते हैं। मीडियम टॉल मीडियम ये सब कर लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 टॉल आ चुके हैं, यानी कि यही वाला केस अगेन रिपीट करूंगा तो 3 शॉर्ट हाइट वाले आएंगे। 3 शॉर्ट का मतलब यहाँ पे भी शॉर्ट हाइट वाला, यानी कि यहाँ पे टॉल शॉर्ट टॉल शॉर्ट। यानी कि क्या बना, 1 2 3 4 5 मीडियम है, टॉल हाइट वाले 1 2 3 4 वो भी है, शॉर्ट हाइट वाले 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है। यानी कि ध्यान दो, तो अपना ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है शॉर्ट मीडियम और टॉल हाइट वाले का, वो 5 6 4 में ही हो रहा है। एंड जो अरेंजमेंट है वो अपनी बहुत ही डिमांडिंग थी, मतलब इसके अंदर 3 5 पॉसिबिलिटी बनी, जिसमें से 2 पॉसिबिलिटी अपनी एलिमिनेट हुई है, और 3 पॉसिबिलिटी है जो कि हम आगे लेके जा सकते हैं। सो एकदम आई वुड रेट इज ऐसा मॉडरेट से डिफिकल्ट वाला सेट, मतलब पेपर वाले फेज में ऐसा सोच ले पाना वुड बी अ चैलेंजिंग थिंग फॉर मी, मतलब मेरे लिए तो था। क्योंकि ऐसा एकदम एक सिमिलर सेट कैट 2019 में आप जाओगे तो 3 तरीके के बॉक्सेस हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज बॉक्सेस, उस पे ये बेस्ड है। एकदम ऐसा सेट वहां पे आपको दिखाई देगा, उसी से इंस्पायर्ड सेट ये सिमकैट में आपका बना था।
ठीक है, लेट्स जंप टू द क्वेश्चन पार्ट। क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। क्या है जो कि ट्रू होना चाहिए था, ठीक है। द स्टूडेंट इन फिफ्थ पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इज ऑफ टॉल कैटेगरी, ठीक है। पांचवे वाला टॉल कैटेगरी है, तो ये परफेक्टली फॉल्स है यार, ये तो मीडियम वाला है, ठीक है। स्टूडेंट इन द एट पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट इज शॉर्ट कैटेगरी, एट्थ वाला कभी शॉर्ट कैटेगरी का है नहीं, ये तो परफेक्टली ट्रू नहीं है। पूछा क्या, मस्ट बी ट्रू, यानी कि बोथ 1 and 2 नहीं, नीदर 1 and 2, क्योंकि दोनों ही ऐसे हैं जो कि परफेक्टली ट्रू नहीं है। व्हाट बेस्ट कैन बी सेड अबाउट द नंबर ऑफ शॉर्ट हाइट, ये तो हमने निकाला था। शॉर्ट हाइट वाले कितने हैं, शॉर्ट हाइट वाले अपने 6 लोग निकले, तो यहाँ पे हमने निकाल रखा है, यानी कि क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली 6 शुड बी द करेक्ट आंसर। हाइट वाइज कैटेगरी ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड, हाइट वाइज कितने लोगों को डिटरमाइन कर पा रहे हैं, ठीक है। एक, बिकॉज यहाँ पे सब मीडियम है, ठीक है। दो, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है, छः, क्योंकि यहाँ ध्यान दो, ये भी शॉर्ट शॉर्ट है और ये भी शॉर्ट हाइट वाला है। सात, क्योंकि ये भी ऐसा ही था, ठीक है। आठ, क्योंकि ये सब बराबर है। ये भी नौ, क्योंकि ये सब भी बराबर है। ये तो केसेस अपने एलिमिनेटेड है ना, तो इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। 10, यानी कि ये भी देखो बराबर है, यूनिकली है। ये 11, यानी कि ये भी अपने यूनिकली डिटरमाइंड है। तो कितने मिले, एक, दो, या दो नंबर है जो नहीं मिला है, बेसिकली ये भी यूनिकली नहीं है। 4 नंबर भी यूनिकली नहीं है, 6 नंबर भी यूनिकली नहीं है, 8 नंबर भी 4 यूनिकली नहीं है और 11 यूनिकली डिटरमाइंड है, यानी कि आंसर क्या होना चाहिए था, आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 वुड बी 11, ठीक है। Which of the following statement is or not definitely student occupying fourth and 14th position from left are of same category, fourth and 14th are same category, fourth and 14th नहीं यार, ये तो अलग अलग है, शॉर्ट और टॉल और टॉल और टॉल। पूछा क्या, डेफिनेटली करेक्ट, ये तो नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज डेफिनेटली करेक्ट नहीं है, मे बी करेक्ट है। स्टूडेंट ऑक्यूपाइंग 7th and 10th पोजीशन लेफ्ट आर करेक्ट, 7th and 10th, 7th में क्या है, मीडियम मीडियम मीडियम, 10th में तो अलग है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट हो गया, ठीक है, यानी कि ये दोनों तो गलत है। अच्छा, स्टूडेंट ऑक्यूपाइंग 10th and 15th पोजीशन आर सेम, 10th और 15th, 10th में क्या है, शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, 15th में भी शॉर्ट हाइट वाला है, यानी कि स्टेटमेंट 3 है जो कि मस्ट बी ट्रू होना चाहिए, ठीक है। What will be the correct range of the value of what will be the current range of the value of among the following four options within which the sum of the position values, if we find the student is standing in the fifth position from the left, when his values will be 5 of all the tall, ठीक है। कह रहा है कि जिस बंदे जिस पोजीशन पे खड़ा हुआ है उस पोजीशन पे उसकी वैल्यू हो जाएगी, और किसका पूछा अपने को, टॉल हाइट वाले का। टॉल हाइट वाले का वैल्यू क्या होने वाली है, टॉल हाइट वाले की वैल्यू क्या हो सकती है, 2, 8, 12, 14, यानी कि 2, 8, 12 और 14, यानी कि इट हैज टू बी 26 और 8, 34, 34 और 2, 36, 36 तक तो होनी चाहिए ऑप्शन में, जाए 36 किस में है, एक ही जगह है, तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। एक बार चेक कर लेते हैं, बाकियों के लिए भी इतना कॉन्फिडेंट तो है ही है। टॉल इधर भी आएगा, 4, 6, 10, 22 और 14, 36, ये भी वही है। इधर भी चेक कर लेते हैं, 2, 6, 8, 8 और 12, 20 और 34, 34 से 36, बेसिकली ये होना चाहिए 34 है। तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इंक्लूसिव, क्योंकि 34 और 36 दोनों यहीं पे आएगा, ठीक है। आई वुड रेट इट एज अ मॉडरेट से डिफिकल्ट वाला बीच का सेट, थोड़ा इसमें केसेस अपने को ज़्यादा बनाने थे, एंड अगर आपने पहले कर रखा है तो मतलब इसके अंदर हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड की गेम है। आपको अगर याद होगा तो आप केसेस देख पाओगे, अगर आपको याद नहीं है तो आप शायद कंफ्यूज भी हो जाओ, बट 15 to 18 मिनट वुड बी अ गुड टाइम, 15 से 18 मिनट के अंदर अंदर ये सेट फिगर आउट किया जा सकता है, ठीक है। चलो कीप प्रैक्टिसिंग।